मेरे पास एक स्टूडेंट का डाउट आया कि मुझे एमबीए अब्रॉड से कर लेनी चाहिए बिकॉज अपेरेंटली इंडियन एमबीए कॉलेजेस इनफ प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं, स्पेशली द टियर 2 इंडियन एमबीए कॉलेजेस। एंड तब मुझे समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ क्लियर करना। द एंटायर प्लेसमेंट सपोर्ट प्लेसमेंट प्रोसेस हैज़ अ वेरी डिफरेंट नरेटिव इन इंडियन एमबीए कॉलेजेस एंड दैट आउटसाइड इंडिया। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्लेसमेंट प्रोसेस इन इंडियन एमबीए कॉलेजेस एंड दोज आउटसाइड, द टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन दैट स्टूडेंट्स एंड कॉलेजेस हैव फ्रॉम द प्लेसमेंट प्रोसेस, the type of roles that come to Indian MBA colleges and those abroad, the profile suited for Indian MBA versus abroad MBA, and finally the packages that you can expect in Indian MBA colleges and that outside. So let's decode everything about placements in MBA colleges. एंड स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट प्रोसेस से। मैं इंडियन एमबीए कॉलेजेस का आपको प्लेसमेंट प्रोसेस बताता हूँ। मैं बोथ टियर 1 एज वेल एज लोअर टियर कॉलेजेस का आपको प्लेसमेंट प्रोसेस बताता हूँ, स्टार्टिंग विथ मैंने जो देखा था IIM अहमदाबाद के टाइम में। सो प्लेसमेंट प्रोसेस बेसिकली एक डिफाइंड पीरियड के लिए एक प्लेसमेंट ड्राइव कंडक्ट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन IIM अहमदाबाद वो 7 to 10 डेज का इंटायर प्रोसेस होता था, जिसमें 3 डेज रिक्रूटर आते थे। फॉर एग्जाम्पल डे 1, डे 2, डे 3, 3 different types of recruiters आएंगे। Day 1 used to be for consulting and finance firms, Day 2 used to be for general management and marketing firms, and Day 3 used to be for product management and some of the startups. And placement drive जो है वो Day 1 के पहले एक particular day होता था जहाँ बहुत सारे finance firms and consulting firms अपने shortlisted candidates से बात करते थे, अपने company को pitch करते थे why they should be putting that company on top of their priority list and everything, and काफ़ी सारे candidates का selection almost certain हो जाता था Day 0 पे ही। Basically day 1 was a formality for them to go to the interview and accept the offer letter. So day 0 से शुरू हो जाता था। काफ़ी candidates informally भी conduct करते थे, जाते थे, कंपनी से मिलते थे। day 1 में actual drive conduct किया जाता था। After that there used to be 1 day का delay होता था, that is 1 day का gap मिल जाता था आपको। उसके बाद conduct किया जाता था GD round, next day GD round conduct किया जाता था for the companies that would be coming in day 2। तो वो companies अपना GD round conduct करते थे and next day whoever are the shortlisted candidates वो जाएंगे day 2 प्रोसेस में, दैट इज विल बी इंटरव्यूइंग विद दोज पर्टिकुलर कंपनीज। उसके बाद अगेन एक दिन का गैप दे दिया जाता था। नेक्स्ट डे अगेन द जीडी प्रोसेस कंडक्ट किया जाता था फॉर द डे 3 कंपनीज एंड द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स नाउ विल गो फॉर सिटिंग इन द इंटरव्यूज फॉर द डे 3 कंपनीज। एंड फॉर द टियर 2 MBA colleges and for the lower tier MBA colleges, the placement process can be a bit different. So they have a specific date of starting the placement process. After that they will have this day 1, day 2, day 3. So day 1 they will have a different kind of a system. It's not like consulting finance companies will visit on day 1. It might be based on the package that the company is offering, it might be based on the reputation of the company, it might be based on the number of hires that that particular company is going to make, depending on the negotiation as well. So the companies and the colleges are also negotiating that what slot will a particular college give a particular company. So for the upper tier IIMs, that is the IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, that negotiation power obviously comes to the colleges, that they can define that okay, consulting finance you will come day 1, marketing you can come on day 2, because that's how we have structured it. But for the other colleges it might so happen that some company might want the day 1 slot, so that's why they will say irrespective of what we are dealing in, if we are giving this kind of a package we have to come in day 1. And in colleges में placement period का कोई defined end नहीं होता है, so companies will keep coming, you can keep applying for those particular companies. हमारे टाइम में जैसे IIMs में you apply to all the companies at once, that is before the placement process itself you apply to the company. However in the other colleges what you have to do is as and when the company comes you can apply to those colleges. There would be some companies you would have applied already, but as the placement period extends you can apply to the companies as and when they are coming. Now coming to abroad MBA colleges. So abroad में क्या होता है, they are not spoon feeding you these kind of placement support or anything of that sort. There they expect you to be mature enough. Yes, some of the companies might come on campus, there might be a placement team as well who will inform, because it's the company's need to come to the campus and hire those candidates. So the companies might request come to the campus, hire some of the candidates, but mostly how it happens is the colleges might share certain requests that or certain openings for certain companies, and the candidates can apply for those companies. The candidates will also apply through separate job portals in different companies. They will apply through job portals and different openings as well outside the campus. So there's no restriction or anything of that sort that you have to apply through the campus placements only. You can apply from outside, and like in IIMs what you have to do is you have to give a declaration if you're applying outside, and you might have to opt out later as well if you're applying outside. So but in abroad you might be a part of the process that is happening within the campus, and you are free to apply outside as well.
And you have to understand this. There might be certain openings which might be specific for a certain college. Say McKinsey might open a specific recruitment drive or a specific link they might generate to for the Harvard graduates to apply. So the college will share that with you. The Harvard graduates will apply. So that becomes an easy process for the company as well to only recruit and to only shortlist the Harvard graduates, give them an early interview and hire them whoever completes that particular interview process. एक और पार्ट होती है अब्रॉड एमबीए कॉलेजेस के प्लेसमेंट प्रोसेस की, एंड दैट आर जॉब फेयर्स. तो क्या होता है वहाँ पर जॉब फेयर्स, एक पर्टिकुलर डे में जॉब फेयर्स अरेंज किया जाता है. लॉट ऑफ कंपनीज विल कम एस्टैब्लिश देयर पर्टिकुलर फेयर्स. द कैंडिडेट्स कैन गो टॉक टू द स्पेसिफिक कंपनी if the profile and the candidates will carry their resume as well, will share their profile with the particular company. If the candidate and the particular company thinks that they are a great fit, there will be a handshake and then they will later go to an interview process. So it's kind of a meet and greet kind of an event where you will meet different companies. The companies will explain you about what they do, what kind of role are they offering, what kind of packages they offer and everything. If the candidate will also share their profile, what they do and everything with the company folks, and if they can do a handshake that okay, we will meet later, they will exchange cards and everything, and after that there will be a complete interview process that will happen after that job fair. So job fairs is also a very big thing that happens outside. And iske baad we'll move to the expectations part, but just to be clear, what we are talking about is the study abroad programs. We are not talking about the global MBA programs, that is India se bhi काफी colleges global MBA programs offer करते हैं. So 1 year you spend here, 1 year you spend in different countries and so on. ऐसे programs होते हैं तो उनका placement process different होता है. There are online global MBA programs as well जिसका भी placement process काफी different होता है from what I am referring to the study abroad program का placement processes. And let me tell you here, अगर आप global MBA और online global MBA pursue करने का सोच रहे हो, then it is very important आप जो भी, because आप इंडिया में रह के global university से abroad की university से MBA pursue कर रहे हो, you have to make sure कि उसका certificate और degree Indian companies में recognized रहे, because you will be applying for Indian companies. You have to make sure कि वो certificate degree recognized रहे, and that is where the partners of this video will come in very handy, which will help you find those legitimate universities for pursuing global MBA, and that is College Vidya. So you can go to the website and let AI find the best universities for you. So you can select the course you want to pursue, fill in a few details, and let AI match you with the top government approved online universities. After that, you can talk directly to university officials, get free career counseling from College Vidya experts, or connect with alumni as well for real insights. And you can also compare universities across 30 plus factors including fees, approvals, placement, ratings and even EMI options. So आपको 100% authentic university connections मिल जाएगा, free career booster programs मिल जाएगा worth 6,999, up to 10,000 rupees CV subsidy मिल जाएगा on admission, and exclusive jobs and internship portal का access भी मिल जाएगा from day one. And College Vidya was also featured in Jio Hotstar's Brands of Tomorrow season 3 for their contribution to online education in India. So if you want to explore the website, the link is there in the description as well as in the pinned comment. You can check it out from there. So अब आते हैं expectations में, and let me tell you the harsh reality. अब्रॉड में MBA कॉलेजेस विल नॉट स्पून फीड यू प्लेसमेंट. वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यू आर मेच्योर इनफ. दे आर टेकिंग देयर फीस फॉर मेकिंग इम्पार्टिंग एजुकेशन, फॉर एजुकेटिंग यू, फॉर टीचिंग यू. द प्रोफेसर्स बेसिकली आर गेटिंग पेड थ्रू योर फीस. तो वो आपको पढ़ाने के लिए फीस दे रहे हैं. उसके बाद जॉब लगाना इज समथिंग विच इज़ ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू विल नॉट बी स्पून फेड दैट. Obviously, they will provide placement support. They will give you those connections. They will give you referrals as well. They will give you alumni connections as well. सब कुछ आपको मिलेगा, but it will be your responsibility to get placed. And the companies will visit the campus as well. There are certain recruitment drives that happens in the campuses as well, and the job fairs and everything as well are arranged by those particular universities. But you have to make sure it will be your responsibility कि आप जाओ उस कंपनी से बात करो, आप प्रॉपरली अप्लाई करो, you understand from the company itself what are their requirements, and then you pitch for the interview, apply, sit for the interview and get converts. इंडिया में expectation बहुत different होता है students का. They feel once they get admission to a particular college, once they are able to clear the interview rounds and everything of a particular college, it is the college's responsibility to get them placed. And once they give 3 or 4 interviews, they are not able to convert that, then the reality starts sinking in. Then they understand that okay, companies would be coming, but now they have to convert it. And पहला 3-4 interview जब convert नहीं होता है, उसके बाद जब companies start drying up as well, especially lower tier MBA colleges में, when there are limited companies coming to those colleges, then that becomes kind of an issue for the candidate as well. उनको लगता है कि अब जो भी कंपनी आ रही है बस वो एक्सेप्ट कर लेते हैं. सो इंडियन MBA कॉलेजेस में वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स का कल्चर भी नहीं है. तो जब कैंडिडेट्स प्लेस नहीं होते हैं, दे स्टार्ट पैनिकिंग बिकॉज कॉलेजेस के बाहर कैसे वो प्लेस होंगे.
एमबीए कॉलेजेस अब्रॉड में अगर आप देखोगे तो 4-5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद कैंडिडेट्स आते हैं, दे नो हाउ द जॉब मार्केट वर्क्स। बट इंडिया में फ्रेशर्स को भी एमबीए कॉलेजेस में ले लिया जाता है, विच मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको जॉब मार्केट कैसे वर्क करता है, कैसे अप्लाई करना चाहिए, इंडस्ट्री में कनेक्शंस कैसे है, तो उनके पास वो कनेक्शंस नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू गेट प्लेस थ्रू द रिक्रूटमेंट, थ्रू द कैंपस रिक्रूटमेंट ओनली। सो ये अलाइनमेंट, ये एक्सपेक्टेशन मिस अलाइनमेंट आ जाती है। ऑब्वियसली द एमबीए कॉलेजेस इन इंडिया एज वेल काइंड ऑफ थ्रू द प्लेसमेंट कार्ड कि हमें इतना का प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे, सो एवरीथिंग काइंड ऑफ बिकम्स मिसअलाइंड एंड वहाँ पर इशू आ जाती है। Yes, that's why the Indian MBA colleges, I would say, give more effort in terms of placement in getting the candidates placed compared to an abroad MBA college. But the idea is expectations ही वैसे set हुई थी। Indian MBA colleges have made sure कि वो ऐसे ही candidates hire करे who might not have connections in the industry. Obviously, they also want to look for candidates who have work experience. But Indian MBA colleges में ऐसा set हो गया है कि after just under graduation, you will go and apply for those MBA colleges itself. एंड ये भी नेचर है, ये भी एक पैटर्न हो जाता है कि अंडर ग्रेजुएशन के बाद भी द जॉब इंडियन जॉब मार्केट कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। 3 लाख 4 लाख का जॉब भी मिलना इज़ नॉट वेरी ईजी कंपेयर टू से आप अब्रॉड में हो तो आप कोई कोर्स कर लेते हो, आप एक जॉब करते हो, उसके बाद MBA करने जाते हो। बट इंडिया में अंडर ग्रेजुएशन के बाद अगर आप देखोगे जॉब मार्केट इज़ नॉट दैट गुड। सो लोग सोचते हैं कि अच्छा नेक्स्ट क्या करना है, इतना पढ़ने के बाद, इतना स्पेंड करने के बाद टिल माई अंडर ग्रेजुएशन आई कैन नॉट रिमेन अनप्लेस्ड, आई हैव टू गेट एटलीस्ट सम प्लेसमेंट। अगर वो 7 लाख 8 लाख का प्लेसमेंट भी हो, एटलीस्ट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम माय करियर फ्रॉम समवेयर। इसलिए वो एमबीए कॉलेज यही सोच के ज्वाइन करते हैं, एटलीस्ट आई विल गेट सम प्लेसमेंट। एंड यहाँ पर इसलिए द टाइप ऑफ रोल्स दैट कम टू द एमबीए कैंपसेस आल्सो बिकम वेरी डिफरेंट। अगर आप आईएम्स में भी देखोगे, आईएम अहमदाबाद बैंगलोर में, वहाँ पर भी जो कैंडिडेट्स जाते हैं दे इधर आर फ्रेशर्स, 30-40% फ्रेशर्स जाते हैं। उसके बाद लेस देन 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस अगर आप देखोगे तो 50% ऑलमोस्ट लेस देन 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस रहते हैं। आफ्टर दैट 2-3 ईयर्स एक्सपीरियंस के कुछ रहते हैं एंड 5-6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तो बहुत कम कैंडिडेट्स जाते हैं। एंड दैट्स वाई द टाइप ऑफ रोल्स दैट कम टू हायर फ्रॉम द कैंपस आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट कंपेयर टू एमबीए कॉलेजेस अब्रॉड। तो अगर आप इनको कैटेगरीज बना लो, फॉर एग्जाम्पल MIM डिग्री करने जो जाते हैं, दैट इज अब्रॉड से MIM, दैट्स बेसिकली आप अगर फ्रेशर हो आप MIM परस्यू कर सकते हो अब्रॉड से, तो वो एक कैटेगरी हो गया। उसके बाद आता है Tier 1 MBA कॉलेजेस का MBA, दैट इज IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, ISB, ये काइंड ऑफ कॉलेजेस उसके बाद एक टीयर में आते हैं। एंड उसके बाद आते हैं अब्रॉड के MBA कॉलेजेस, दैट इज हार्वर्ड एंड एवरीथिंग। सो वो एक लेवल ऊपर हायर होते हैं। तो मैं अगर स्पेसिफिक फर्म का एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल आप मैकेंसी से जाते हो तो MIM करके जाते हो तो यू विल बी हायर्ड एज एन एनालिस्ट और जूनियर एसोसिएट। अगर आप इंडियन MBA करके जाते हो तो यू विल बी हायर्ड एज अ जूनियर एसोसिएट और अ सीनियर एसोसिएट। एंड अगर आप हार्वर्ड MBA या फिर उस टाइप के MBA कॉलेजेस से जाते हो, देन डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर वर्क एक्सपीरियंस इज, आप कितने साल वर्क एक्सपीरियंस के बाद गए हो, you will be hired as a senior associate, consultant, or even sometimes as directly as a manager. So abroad में क्या होता है, because you are also applying off campus, so you can apply specific to your years of experience, you can apply to that specific role in that specific company. However, India में, because the company is coming to the campus, they are coming for a specific role. So even if you have say 5-6 years of experience at IIM Ahmedabad, if the company is coming for associate profile, you might be offered that associate profile only. Mostly मतलब extent, अगर maximum extent ले लूँ मैं, तो आप हो सकता है एसोसिएट से वो कंसल्टेंट रोल ऑफर कर दे। हाउएवर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट प्रमोटेड टू अ मैनेजरियल लेवल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आपको वो 1 साल कंसल्टेंट लेवल में रखेंगे, आफ्टर दैट दे माइट गिव यू एन अर्ली प्रमोशन, दैट इज फाइन। बट डायरेक्टली गेटिंग हायर्ड एट अ मैनेजर लेवल एट से एनी कंसल्टिंग फर्म फ्रॉम इंडियन MBA कॉलेजेस विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, विच इज पॉसिबल फ्रॉम से इफ यू आर एट हार्वर्ड, यू आर डूइंग हार्वर्ड MBA एंड आपके पास वो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो उस रोल में एंड यू माइट बी हायर्ड एज वेल। सो दैट्स वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप ऑफ रोल दैट कम फॉर इंडियन MBA कॉलेजेस। इसलिए कभी लोग बोलते हैं कि वेदर आई शुड परस्यू MBA as a fresher or with work experience. In India, the kind of roles that come to the campus is very different from a Western concept. इसलिए आप Western concept को इंडिया में contextualize मत करो। Western thing is different, Indian thing is different, job markets are different, the kind of roles that come to the campus for hiring is different. So अगर आप 5-6 years के बाद consultant level में hire होते हो, then you kind of are moving back in your career. So अगर आप 2 साल के बाद consultant level में hire हो जाते हो और associate level में भी hire हो जाते हो, एंड वहीं से कोई हार्वर्ड में 5-6 years के बाद मैनेजर लेवल पे हायर हो रहे हैं, देन आफ्टर 2 or 3 years you will also get promoted to the same level and kind of same career trajectory में आ जाओगे with same years of experience. तो आपको ये समझना पड़ेगा, if you want to come to the same level, so obviously आपको ज्वाइन करना पड़ेगा MBA colleges certain years earlier than say a Harvard MBA graduate. इसलिए now coming to the profiles required for MBA,
इंडिया में जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास 2-3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, दैट्स अ स्वीट स्पॉट। आपके पास इनफ एक्सपीरियंस भी हो गया एंड आप कंप्लीट फ्रेशर भी नहीं हो। बट इवन एज अ फ्रेशर अगर आप जाते हो एमबीए कॉलेजेस में, तो काफ़ी सारे मार्केटिंग रोल्स, कंसल्टिंग रोल्स आपके लिए फिर भी ओपन होते हैं। अब्रॉड एमबीए कॉलेजेस में वो कंसिडर करते ही नहीं है आपको एज एन एमबीए, अगर आप ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सर्टेन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद नहीं जाते हो। 4-5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद जाते हो, देन ओनली दे कंसिडर इट एज एन एमबीए। एटलीस्ट मिनिमम तो 3 ईयर्स लगता ही है, अदरवाइज दे वोंट इवन ऑफर यू एडमिशन। सो दैट्स वाई इट्स वेरी डिफरेंट। वहाँ पर प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो वर्क एक्सपीरियंस को काउंट किया जाता है, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपने बाकी क्या किया, अकेडमिक्स को छोड़ के क्या किया, उस पर भी काफ़ी स्ट्रेस दिया जाता है वर्सेज इंडिया, जहाँ अकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। इसलिए अगर आपने बाहर मान लो एकेडमिक्स करने के बाद आपने थोड़ा वर्क किया है, तो उसको भी आपका वेटेज ज़्यादा दिया जाता है। आपने कोई एनजीओ के लिए वर्क किया है, आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया है, उनको भी दिया जाता है, सो दैट यू हैव दैट टाइम एज वेल आउटसाइड ऑफ अकेडमिक्स। आप टाइम दे सकते हो आफ्टर योर ग्रेजुएशन, आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन, आप उन चीज़ों पर टाइम दे सकते हो एंड आपका प्रोफाइल बिल्ड हो रहा है फॉर योर एमबीए। हाउएवर इन इंडिया अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा गैप ले लेते हो, देन प्रॉब्ली इट्स नॉट एग्जैक्टली अ पॉजिटिव, मतलब ऐसा कोई नेगेटिव भी नहीं है, बट द आइडिया इज यू आर नॉट बिल्डिंग ऑन योर प्रोफाइल। ओके, इफ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, 5 पॉइंट्स ऐड होता है आपके, मान लो आपके एडमिशन में 5 पॉइंट्स ऐड कर दिया जाएगा फॉर योर टिपिकल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बट 5 पॉइंट्स इज नॉट अ वेरी बिग कॉम्पोनेंट ऑफ द एंटायर एडमिशन प्रोसेस। रादर अकेडमिक्स का ज़्यादा कॉम्पोनेंट रहता है, कैट स्कोर का ज़्यादा कॉम्पोनेंट रहता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी अकेडमिक्स स्ट्रांग हो, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। आपका एंट्रेंस एग्जाम स्कोर वो स्ट्रांग हो। वर्क एक्सपीरियंस और विदाउट वर्क एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, वर्सेस से इफ यू आर परसिंग अब्रॉड एमबीए, वहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है एंड ऑल्सो द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का पोर्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो नाउ फाइनली कमिंग टू द पैकेजेस एंड द टाइप्स ऑफ रोल्स और द टाइप ऑफ कंपनीज दैट कम टू कैंपसेस। सो इट्स नॉट इंडिया वर्सेज अब्रॉड हियर, रादर इट इज़ इंडिया वर्सेज सिंगापुर वर्सेज दुबई वर्सेज यूएसए वर्सेज यूरोप, बिकॉज depending on what industry is thriving in that particular country, more roles will come to those colleges. अगर आप मान लो सिंगापुर से एमबीए परस्यू कर रहे हो, different kind of roles will be in majority in Singapore. आप इंडिया से कर रहे हो, different kind of roles will be in majority. यूएसए से कर रहे हो, different kind of roles will be in majority. And packages also will be very different accordingly. अगर आप इंडिया में देखोगे तो कंसल्टिंग एंड मार्केटिंग रोल्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगे अक्रॉस कैंपसेस। अगर आप सिंगापुर में देखोगे तो फाइनेंस रोल काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, स्पेशली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड मार्केट रोल्स। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मार्केट रोल्स देखोगे, काफ़ी सारे इंडिया से भी एमबीए कॉलेजेस में, स्पेशली आईआईएम से काफ़ी सारे लोग सिंगापुर जाते हैं, हांगकांग जाते हैं। तो सिंगापुर हांगकांग से अगर आप परस्यू कर रहे हो एमबीए, यू विल सी अ लॉट ऑफ फाइनेंस रोल्स कमिंग टू योर कैंपस। उसके बाद अगर आप यूएसए चले जाओगे तो यूएसए में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स, कंसल्टिंग रोल्स ऑब्वियसली आर एप्लीकेबल एवरीवेयर, बट काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स भी रहेंगे यूएसए में, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टेक फर्म्स दैट हैव बीन बिल्ड एंड अ लॉट ऑफ टेक फर्म्स दैट आर बीइंग बिल्ट एज वेल। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है वहाँ पर, कंसल्टिंग का भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो दुबई अगर आप चले जाते हो फॉर एग्जांपल, अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी वर्क इज गोइंग ऑन देयर। सो अगेन कंसल्टिंग, स्ट्रैटेजी वर्क, स्ट्रैटेजी रोल्स आर बीइंग ऑफर्ड अक्रॉस कंपनीज। सो वहाँ भी जॉब मार्केट काफ़ी डिफरेंट है। सो दैट्स वाई कंट्री वाइज जो टिपिकल रोल्स ऑफर किए जाते हैं वो डिफर कर सकते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द रोल्स विल बी ऑफर्ड इन एवरी कंट्री। हो सकता है कोई ज़्यादा कोई कम, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हो सकता है फाइनेंस फर्म ज़्यादा कम हो, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एग्जिस्ट नहीं करते। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू मेक इट, बट येस कंसल्टिंग एंड मार्केटिंग के ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के भी एग्जिस्ट करेंगे, बट प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल्स यूएसए में ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे, फाइनेंस के रोल्स सिंगापुर में, हांगकांग में ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे, स्ट्रैटेजी रोल्स दुबई में ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे। एंड अगर आप पैकेजेस देखोगे तो एक बात मैं बता देता हूँ, ऑब्वियसली पीपीपी टर्म्स में यूएसए में सैलरी विल बी मोर कंपेयर टू इंडिया, बट अगर मान लो मैकेंसी है वो सेम रोल के लिए हायर कर रही है इन इंडिया एंड इन यूएसए, तो मोस्टली यू विल सी कि पीपीपी टर्म्स में अगर आप 40 लाख मान लो आपको इंडिया में मिल रहा है, तो यू माइट गेट लाइक 1.7 1.8 करोड़ इन यूएसए, बट पीपीपी टर्म्स में वो काइंड ऑफ इक्विवेलेंट होता है अगर आप देखोगे। तो मोस्ट ऑफ द फर्म्स एट द सेम लेवल डू नॉट डिफरेंशिएट इन दीज टर्म्स। अगर वो सेम रोल ऑफर कर रहे हैं इन इंडिया और इन अब्रॉड, दे विल मेक श्योर कि इन पीपीपी टर्म्स बोथ द सैलरीज आर एट पार। येस, पैकेजेस में डिफरेंस कहाँ हो जाता है? इन टैक्सेशन, दैट इज इंडिया में आप हो तो आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ टैक्स देना पड़ेगा, यूएसए में यू हैव टू गिव हायर टैक्सेस, दुबई में देर आर लेस टैक्सेस, 5% आई थिंक मैक्सिमम आप दोगे, तो वहाँ पर यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी, दैट इज योर इन हैंड कॉम्पोनेंट विल बिकम अ लॉट मोर। तो सीटीसी के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो इट माइट मैच, हाउएवर टैक्स देने के बाद व्हाट यू गेट इन हैंड दैट माइट बी वेरी डिफरेंट इन दुबई वर्सेज इन इंडिया वर्सेज इन यूएसए, एंड दैट्स व्हाई यू हैव
to take those things also into account. That's why अगर आप अभी देखोगे तो दुबई में most of the consultants are getting highly paid in Dubai. Most of them are going to Dubai as well because टैक्स का वो बेनिफिट मिल जाता है, एंड काइंड ऑफ पीपीपी टर्म्स में भी दुबई में बेनिफिट मिल जाता है कंपेयर टू यूएसए. सो दैट्स व्हाई दुबई में अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, अ लॉट ऑफ कंसल्टेंट्स आर गोइंग टू दुबई टू सेव मोर मनी because the earning potential is becoming more, at least in the Middle Eastern region these days. So hopefully I was able to explain you about the placement process in India and in abroad. एक बात याद रखना, अगर आप एक decent MBA कॉलेज से परस्यू करते हो अपनी MBA, whether in India or in abroad, आपको ample placement opportunities provide कर दिए जाएंगे, whether through the college या फिर through your referrals या फिर through the alumni network या फिर through applying off campus. आपको एक decent placement मिल जाएगा if you are joining a decent MBA college. So that's it from my end for this particular video. Do make sure to subscribe to the channel if you want to understand more about MBA. See you in the next video.